اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 217 تا 221، پارہ دوسرا، سورۃ بقرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر۔ آپ سے اے امام الانبیاء، سید الکونین، فخر موجودات، سید المرسلین، آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کے صحابہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں۔ حرمت والے مہینے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پاک نبی تک اور پاک نبی سے لے کر قیامت تک حرمت والے مہینے رہیں گے، اور وہ 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، رجب۔ پاک نبی کے جانثار اعلی کلمت الحق کے لیے احکام باری تعالی جو پاک نبی پر جبرائیل اللہ کے حکم سے لاتے تھے، ان کو پھیلانے کے لیے جمادی الاخرى کے ماہ میں روانہ ہو گئے۔ راستے میں کفار نے ان کا راستہ روکا اور حملہ آور ہو گئے۔ صحابہ کرام نے سیلف ڈیفنس میں، چونکہ اسلام میں انسان تو انسان، چونٹی پر ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایک اشرف المخلوقات پر ظلم کیا جائے یا اس کو ناحق قتل کیا جائے۔ اسلام کی ابتدا سے آج تک اور قیامت تک جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ جس وقت کفار حملہ آور ہوں، پہل کریں، تو پھر جہاد فرض ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سیلف ڈیفنس میں حملہ کیا تو ایک کافر مارا گیا، اور شام کو رات کو رجب کا ماہ شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے قیامت برپا کر دی کہ مسلمان اللہ کے حکم توڑنے سے منع کرتے ہیں۔ حرمت والی مہینوں کے بارے میں اللہ کے احکام ہیں کہ ان میں لڑنا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک آدمی قتل کر دیا ہے، اور اسی طرح کفار نے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کیا، اور آپ پر اعتراضات، آپ کے صحابہ پر اعتراضات کیے، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے گناہ معاف کر دیے، اور ان کے اعتراضات کا خود اللہ نے خود جواب دیا، اور ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ۔ پیارے نبی آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ قِتَالٌ فِيهِ کبیر۔ آپ اعلان فرما دے پیارے حبیب کہ اس میں لڑائی، اس میں جنگ و جدال بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جب کفار نے اس کا حیا نہیں کیا، پہل کی، تو پھر میری طرف سے اجازت تھی کہ تم نے ان کو معافی نہیں دینی ہے۔ تو جب انہوں نے میرا حکم پورا کر کے قتل کر دیا ہے تو میں نے تو ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن یہ خود کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے منکر بن گئے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کی انہوں نے خود خلاف ورزی کی ہے۔ قُلْ قِتَالٌ فِي کبیر وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور انہوں نے حرمت والے مہینوں میں اللہ کے احکام پھیلانے سے اللہ والوں کو، جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے احکام کا انکار کرنا، اللہ کے پیارے نبی کا، اللہ کے پیارے نبی کی تعلیمات کا انکار کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور مسجد حرام میں صلح حدیبیہ کے موقع پر پاک نبی کو نہ جانے دیا، آپ کے جانثاروں کو نہ جانے دیا، اللہ کی عبادت نہ کرنے دی، بہت بڑا کفر اور بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دیا۔ پاک نبی کے صحابہ وہاں رہتے تھے تو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ
वल-फितनत अकबर मिनल कत्ल, और शिरक करना और तौहीद और अल्लाह के अहकाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करने, उसकी मुखालफत करनी, उनको नया टच देना, नया रंग देना, ये तो उससे भी बड़ा गुनाह। वल-फितनत अशद्दु मिनल कत्ल, ये कत्ल से भी ज्यादा सख्त है जो कि कुफार करते हैं और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वला यज़ालूना युकातिलूनकुम हत्ता युरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। ऐ प्यारे हबीब, ये कुफार ये हमेशा आपसे और आपके जानसारान से और आपके फॉलोअर्स से किताल करते रहेंगे, पहल करेंगे, और इनकी ख्वाहिश तो ये है कि तुम्हें दीन इस्लाम से हटा दें और मुर्तद कर दे। वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन। अल्लाह ने एक उम्मत मुस्लिमा के लिए एक फैसला भी दे दिया, एक हुक्म दे दिया कि जो इस्लाम लाने के बाद वापस कुफर में चला जाए, उसके अल्लाह ताला फरमाया फउलाइका हाबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह, उनके दुनिया और आखिरत के सारे अमाल तबाह हो गए। जितनी उसने नमाजें पढ़ी, हजें की, नवाफल पढ़े, तरावी पढ़ी, हिफज किया, खैरात की, सारे के सारी उसकी नेकियां गारत चली गई। वमन यर्तद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुव काफिरुन फउलाइका हाबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका सहाबुन नार हुम फिहा खालिदून। अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता बना दिया कि जो दीन इस्लाम से वापस कुफर में चला गया, उसके जितने भी पहले उसने नेक काम किए थे सब तबाह हो गए, और अगर कुफर पर मरा, तौबा न की, मुर्तद हालत में मरा, तो हमेशा हमेश के लिए वो जहन्नम में रहेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह। सहाबा किराम के दिल में ये एक खदशा था जिसका अल्लाह ताला ने इस आयत में जवाब दिया है कि अल्लाह ताला ने वो जो माहे हुर्मत वाले महीने में कत्ल हो गया था उसका गुनाह तो माफ कर दिया है, राजी भी हो गया है, लेकिन हमारे ईमान और हमारे अमाल और हमारे जिहाद का जो उस सफर में हमने ये सारे अमाल किए हैं उनका क्या बना होगा। तो अल्लाह ताला ने खुशखबरी दे दी, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फी सबीलिल्लाह, जो ईमान लाए और हिजरत की और जिहाद किया, उलाइका यरजून रहमतल्लाह वल्लाहु गफूरुर रहीम, वो अल्लाह से रहमत के उम्मीदवार हैं और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह बेबहा उनको इनाम देगा। यसअलूनक अनिल खमरी वल मैसिर, सहाबा किराम ने शराब और जुए के बारे में पाक नबी से पूछा कि इसके बारे में हमारे लिए क्या अहकाम है। अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम शराब की ममानत में, जुए की ममानत में बयान फरमाया, और सब में अल्लाह ताला ने नाराजगी का इजहार फरमाया और इन दोनों कामों को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया। लेकिन मुस्तकिल हुर्मत जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो 7वें पारा में सूरत मायदा में अल्लाह ताला ने अलल इलान वाज़े तौर पे ये हुक्म दे दिया कि दोनों हराम हैं, इन दोनों के करीब नहीं जाना और दोनों का करना गुनाह कबीरा है। या जब उन्होंने पूछा यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर, तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि प्यारे हबीब फरमा दे कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इन दोनों में बहुत बड़े गुनाह, व मनाफिउ लिन्नास, और नफे भी हैं, व इस्मुहुमा अकबर, लेकिन याद रखें दोनों में मुनाफों से ज्यादा गुनाह है। व इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इमा व यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून। साहबा ने पूछा हजूर अल्लाह की राह में क्या खर्च करें, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया जो जरूरियात से हाजात से बचे सब अल्लाह की राह में खर्च कर दो। फिर दुनिया वाला आखिरा, जैसा तुम आखिरत की तैयारी में रहते हो इतना ज्यादा ना खर्च करो कि तुम्हारी जरूरतें पूरी ना हो और तुम भीख मांगने लगो। लिहाजा जैसे आखिरत का फिक्र करते हो अल्लाह तुम पर राजी है, इसी तरह अगर उसको राजी करने में अपनी दुनिया की जिम्मेदारियां भी पूरी करने का ख्याल रखोगे तो अल्लाह ताला उस पर भी राजी होंगे। कुल अफ कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफक्करून। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये आयात इसलिए बयान हो रही हैं कि तुम इसमें गौर व फिक्र करो, दुनिया को भी देखो और इसमें अल्लाह के हुक्म पूरे करो और आखिरत की तैयारी भी करो। वयसअलूनका अनिल यतामा, अल्लाह के नबी से यतामा के बारे में पूछा तो आपने फरमाया कुल इस्लाहुल लहुम खैर, उनको नफा देने के लिए, फायदे देने के लिए,
जो भी तुम काम करोगे वो खैर है, वो बेहतर है, उस पर अल्लाह राजी होगा। मैं तो खालितूहुम, चूंकि पहली जब आयत नाज़िल हुई कि जो यतीमों का माल खाते हैं पेटों में आग भरते हैं, लिहाजा सहाबा कराम अल्लाह से कितने डरते थे कि यतीमों का माल पड़ा रहता था, गल सड़ जाता था, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाते थे, तो इस तरह यतीमों का नुकसान होने लगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वैन तो खालितूहुम फइख्वानुकुम, अगर तुम उनकी बेहतरी और फायदे के लिए उनसे अपना माल मला लेते हो, उनका माल और अपना माल मिक्स करके उनको भी फायदे देते हो और अपने माल के खुद फायदे लेते हो, तो अल्लाह ताला इस तुम्हारी नेकी पर खुश होगा। वल्लाहु यअलमुल मुफसिद वल मुस्लिह, अल्लाह ताला तो जानता है ना कि कौन खयानत कर रहा है, कौन अमानत कर रहा है, कौन बददियानती कर रहा है और कौन दियानतदारी कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन जुल्मन यतीमों के हक छीन रहा है और कौन इंसाफ के साथ यतीमों का तामन कर रहा है। वलो शाअल्लाहु लअनतकुम इन्नल्लाह अज़ीज़ुर हकीम, अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हें इन अहकाम में मुशक्कर में डाल देता। अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। हुक्म होता है वला तनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन, ऐ ईमान वालो मुशरिकीन से यानी मुशरिकीन की ख्वातीन से निकाह न करो। अगर तुम्हें उनसे निकाह की जरूरत पड़ जाए और जितने भी रिश्ते हैं, जितनी भी ख्वातीन हैं वो मुशरिका हों, तो एक अगर लौंडी मिल जाए उनके मुकाबले में वो हर लिहाज से बेहतरीन हो और ये हर लिहाज से दुनियावी लिहाज से उनसे डिग्रेड हो, तो तुम इसकी तौहीद की वजह से उससे निकाह कर लो। उन आजाद औरतों से जो मुशरिका हैं उनसे निकाह न करो। शिरक क्या है? अल्लाह की जात में, अल्लाह की सिफात में, अल्लाह के अफ़आल में, अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की कारागरी में, अल्लाह के इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर होने में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के इलाह होने में किसी को शरीक बना लिया जाए। अगर मुसलमानों में इस किस्म का अकीदा है तो ऐसी मुसलमान औरतें जो शिरक करती हैं या उनमें शिरकी अकीदे हैं, अगर इस्लाह कर दी जाए, वो तौबा तैब हो जाए तो फिर तो ठीक है। अगर तौबा तैब नहीं होते तो फिर मुशरिका से निकाह हराम है। दूसरे मसलकों में, यहूदियों में, ईसाइयों में, गैर मुस्लिमों में, जहां जहां भी किसी औरत में शिरक होगा तो उससे शादी नहीं करनी, चाहे वो खूबसूरत हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे वो हर लिहाज से तुम्हें पसंदीदा हो। उससे अल्लाह ताला फरमा रहे बेहतर है कि लौंडी से निकाह कर लो। इसी तरह दूसरा हुक्म ये फरमाया वला तुनकिहुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु वला अब्दु मोमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलो आजाबकुम, अगर तुमने बच्ची की शादी करनी है और सारे लोग मुशरिक हैं और एक गुलाम है लेकिन है तौहीदी, तुम अपनी बच्ची का रिश्ता उससे कर लो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो मुशरिक हैं ये अल्लाह ताला की नाराजगी की तरफ बुलाते और अल्लाह ताला की नाराजगी जहन्नम की तरफ ले जाएगी, शिरक जहन्नम की तरफ ले जाएगा। वल मगफिरतु बिइज़्नी, अल्लाह ताला अपनी मगफिरत की तरफ बुलाता है, अपने अहकाम पर अमल करने की तरफ बुलाता है, अपनी तौहीद पर अमल करने की तरफ बुलाता है। वयुबय्यिनु आयाति लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून, और अल्लाह ताला अपनी आयात खोल खोल के बयान करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो और उस पर अमल करो। वमा अलैना।